Namaskar and hello to everyone. My name is Ipshita Biswas and I am working as Subject Matter Specialist in Fishery Science under Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University. Well, today I am going to talk about fishery-based integrated farming system, and before I start, मैं कुछ facts and figures बताना चाहती हूँ regarding human population. Worldwide it is estimated around 7.8 billion and India it is around 1.35 billion. Shocked? But it's a true fact. And these facts and figures is creating a havoc pressure to agriculture and allied sectors. In addition, climate change as well as shrinking of cultivable land is also creating impact and challenges to agriculture and allied sector in terms of food security. So to combat these challenges, integrated farming system need to be adopted. अभी आ जाते हैं about integrated farming system. क्या है integrated farming system? It is an approach to link different farming components which are interrelated, which are interdependent, such as crop, livestock, fisheries, and other subsidiary components. The basic principle of integrated farming system is that there should be waste utilization or waste minimization, whatever you say. मतलब the component or the output of one component must be the input of the other component, and as a result, the efficiency of that whole farming system need to be increased, the production need to be increased, the system should be economically viable, and the production costs need to be minimized. So these are the main focus or main motives to adopt integrated farming system. Now, coming back to its categories, integrated farming system can be further classified into three different categories. The first is the agriculture based category. Like agriculture cum fish farming system. In this kind of farming system, I can give you a classical example of paddy cum fish culture, which is traditionally very prevalent और ज़्यादा से ज़्यादा वो ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में देखा गया है, including Bihar, Bengal and certain parts of Assam, etc. और साथ ही साथ along with this paddy cum fish culture, we can also give an example of like horticulture cum fish culture, and like fish pond के बांध में हम लोग कुछ horticulture या कुछ vegetables लगाते हैं. That also comes under agricultural cum based fish farming. The next is animal husbandry based fish farming. But the name depicts different animal components. क्या क्या हो सकता है? Like duckery, poultry, then piggery, then goatery, etc. etc. ठीक है? So these components, when like integrated with fish farm, then it is known as animal husbandry cum fish farming. The third is the other allied sectors. उसमें क्या आता है? Like mushroom production, and other comes like cultivation of aquatic plants. Like I can cite an example of makhana cultivation, which is very prevalent in Bihar, so, and as well as water chestnut, जो सिंघारा बोलते हैं हम लोग उसको हिंदी में. So that kind of cultivation, or azolla cultivation, that kind of other kinds of cultivation I can further classify into other allied sectors. So but I think you all will be surprised that in every categories fish is it is constant. Why so? It is so because in the last few years we have seen, or in the 12th 5-year plan we have seen that there is a steady increase in fish production growth, and it has contributed. So the annual growth rate is around 6%, okay, which is high compared to the other agricultural products. As well as fisheries is also contributing a large share in agricultural, around 5.37 in agricultural gross value added, and around 0.9% to the total national gross value added. So this way the importance of fisheries actually is increasing.
as well as what happens, the other components means farming system को ऐसे बनाना चाहिए like every component must be interrelated, and pond being the different in aquatic ecosystems में क्या होता है, जितना भी बाहरी what to say ना, the organic part of like the excreta of animal, then the straw, everything that can be dumped into this pond system, and basically that acts as a manure or fertilizer to the pond, and उसके लिए जो fertilizer देने की ज़रूरत नहीं है, feed देने की ज़रूरत नहीं है. So in this way also we are utilizing the waste. And coming to the what to say, the freshwater fish resources in Bihar, basically Bihar is a landlocked state. Landlocked state मतलब है जिसमें seas and oceans connected नहीं है, and as a result क्या होता है, जो fresh water सिर्फ है हम लोग इस region में, इस belt में, and that water mostly comes from ponds and tanks, rivers, canals, and mostly from floodplain wetlands जो हम लोग का बहुत ही productive है but under exploited area. So that is our prime focus too. So इतना जितना भी water resources है, within that water resources we want to increase our fish production. Okay, so our prime focus is on freshwater fish farming. Okay, and coming next is like why fish farming, like what are the fishes we need to choose, or what are the fish species we need to choose for aquaculture production in respect to integrated farming, and what are the best management practices we can follow for that. So I'm not going in details about fisheries concept, like how you are going to site selection. That is not our concern now. Like we are going to talk mostly on like what are the species need to be cultured. Mostly freshwater fish species are like catfishes, carps, the major component, then catfishes, morels, and different other shellfishes and etc. There are a lot more, but इसमें हम लोग ज़्यादा और ज़्यादा prevalent जो है उसके बारे में हम बात करेंगे. Mostly prevalent is the carps. Now carps are again differentiated into two different types, actually three, but we are going to talk about two. Like one is Indian major carp, another is exotic carps. The third one which I was talking about are the minor carps, but minor carps is not our concern for now. We will talk mostly about Indian major carps and exotic carps. So what are the Indian major carps? It comprises mostly of katla, rohu, and naini, the mrigal. And exotic carps are the difference between exotic and indigenous carps are like exotic carps मतलब वो बाहरी से आए हैं, and like now they are inhabiting in our own area, but indigenous carps or the Indian major carps are basically they are of our region, they are native to our country, and now also they are inhabiting in our place. So these are the major difference. So the exotic carps जो बाहरी से हम लोग में यहाँ आया है वो है mostly grass carp, silver carp, and common carp. Okay, I will tell you the scientific name of all the carps are like grass carp is Stenopharyngodon edila, silver carp is Hypophthalmictis mollitrix, common carp is Cyprinus carpio. अब आ जाता है IMC में, like IMC means Indian major carp once again. Okay, so IMC में है कतला, scientific name is also very easy, it's katla, then rohu, Labio rohita, and mrigal, it's Cyrrhinus mrigala. I hope you will remember this. So these are the major 6 species or 6 carp species which we will utilize in our integrated farming system as composite culture. What is a composite culture? Composite culture एक ऐसा polyculture है of different fish species which utilizes every ecological niche. Now what do you mean by ecological niche, or what is the utilization of resources? Because क्या है, pond water ऐसा है होता है, okay, and it has been differentiated into 3 different layers. एक होता है अपर लेयर, एक होता है कॉलम लेयर, एक होता है बॉटम लेयर. कॉलम मीन्स द मिडिल पार्ट. सो कोई होता है क्या, सरफेस फीडर है जो ऊपर ही खाता है, ऊपर ही रहता है, एंड कोई होता है कि बीच में रहता है, कोई होता है नीचे में रहता है. तो सबको पूरा होल यूटिलाइज करने के लिए अगर हम सिर्फ कोई करता क्या है, सिर्फ रोहू डाल देता है, सिर्फ कतला डाल देता है, या फिर सिर्फ ग्रास कार्प डाल देता है, सो दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ योर टोटल सिस्टम. तो
कंप्लीट यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको हर लेवल में कुछ कुछ मछलियों को रखना पड़ेगा, विच विल हेल्प। एंड दो चीज़ है, एक तो टोटल आपका वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा, एंड सेकेंडली योर प्रोडक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज आप मछली ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं एंड योर प्रोडक्शन विल ऑलवेज इंक्रीज मोर। एंड तो I will talk about the different categories of fishes and which are predominant in which area. I will talk about it also. But before that, I want to tell you something. In integrated farming system, the best management practice is आप हमेशा फिंगरलिंग साइज ऑफ फिशेस को चूज़ कीजिए, वही बिकॉज इसका मोर्टलिटी रेट बहुत कम होता है, अराउंड 80 to 90% इसका सर्वाइविलिटी रेट होता है, मतलब 10 to 20% इज मोर्टलिटी रेट, जितना भी आपका हैंडलिंग में खराब हो, लाइक द वे यू व्हाट टू से स्टॉक, द वे यू ट्रांसपोर्ट। तो ये सब का जो झंझट है, इससे फार्मर्स को थोड़ा छुटकारा मिलेगा, क्योंकि स्पॉन और फ्राई अगर आप स्टॉक करते हो तो देयर आर लॉट ऑफ मोर्टलिटी इश्यूज इन इट। So better I will always suggest please go for fingerling. Fingerling means जो अंगुलिका के साइज का होता है around 10 to 15 सेंटीमीटर. So this is a very old method to tell कि एक फिंगर के इंडेक्स फिंगर के साइज के होते हैं, और you can tell कि 10 से 15 सेंटीमीटर के अंदर जो मछली का साइज है वो आप स्टॉक कीजिए। और स्टॉकिंग डेंसिटी हमेशा याद रखना चाहिए, लाइक पर हेक्टेयर स्टॉकिंग डेंसिटी शुड बी अराउंड 6000 to 8000 नंबर्स ऑफ फिंगरलिंग। नाउ जब मैं 6000 से 8000 बोल रही हूँ, इसका भी डिफरेंट क्या है, मतलब टोटल में बोल रही हूँ, टोटल पॉन्ड इकोसिस्टम का मैं बोल रही हूँ। नाउ इफ आई अगर मैं बोलती हूँ 6000 से 8000, सपोज मान ली आप 8000 स्टॉक करेंगे। नाउ व्हेन आई विल टॉक अबाउट लाइक ऊपर कितना रहना चाहिए, बीच में कितना रहना चाहिए और नीचे कितना रहना चाहिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कितना परसेंट, मतलब वो परसेंट से आपको निकालना पड़ेगा कि आपको 8000 अगर रहेगा तो ऊपर में आपको कितना मछली चाहिए, बीच में कितना चाहिए और नीचे में के लिए कितना चाहिए। सो ऊपर जो मछली रहता है वो, इफ़ आई विल टॉक अबाउट IMC, एंड IMC में अगर है तो फर्स्ट आपको ऊपर में रहेगा है कतला, नेक्स्ट बीच में आपको रहेगा रोहू, और लास्ट में आपको रहेगा नैनी और मृगल, जो भी आप बोलते हैं। सो ये है एक सिस्टमैटिक लेयर, और साइंटिफिकली जो मतलब हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मछली को, ये मैं बोल दी IMC में। अब एग्जॉटिक कार्प में क्या होगा, पहले होगा सिल्वर कार्प, बीच में होगा ग्रास कार्प और लास्ट में होगा कॉमन कार्प। ना अगर हम रेशियो बोलते हैं तो पहले ऊपर में कौन रह रहा था, कतला और सिल्वर, तो ये दोनों मिलाकर हमको 40% ऑफ 8000 या 6000 जितना भी आप लेना चाहते हैं, उतना टोटल मिलाकर उतना लेयर 40% होना है टोटल 100% में। जो बीच वाला है उसमें आपको 20% लेना है रोहू और 10% लेना है ग्रास। जो लास्ट लेयर है जो 30% है, उसमें मतलब अगर आप हाफ ऑफ कर लेते तो 15% हो जाएगा कॉमन कार्प और 15% हो जाएगा आपका मृगल। सो टोटल में होना चाहिए मोटा मोटी 30%. सो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेस. Okay, and the total 6 species culture is known as also composite culture. Now so this species has been differentiated, क्योंकि क्यों हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में बोलते हैं, बिकॉज इसका फीडिंग जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट है उसका, लाइक दे इनहैबिट, बिकॉज ऊपर में मोस्टली प्लैंकटन खाते हैं, नीचे मोस्टली डिकेइंग मैटर जो सड़ा गला चीज़ है वो खाते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द फीडिंग हैबिट ऑल्सो दे हैव चूजन देयर ओन निशे, दे हैव चूजन देयर ओन लेवल्स. ओके, सो इन दिस वे वी आर कैटेगराइज. तो ये होगा मतलब फिशरीज का. लाइक साइड बंद में जो भी होगा वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी आप लोग लगाना चाहते हैं वो आप लगा देंगे. एंड नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट लाइक when you are transporting these fishes or when you are handling those fishes, आपको क्या करना चाहिए, feeding कितना देना चाहिए. So this is also some important factors, like feeding should be around 4 to मतलब जितना body weight है मछली का उसका 4 से 5%, like 4 to 5% of its body weight mostly. उससे ज़्यादा या कम मत दीजिए. and it should be fed twice a day, मतलब एक सुबह को एक शाम को. Okay, now 1 minute. I just want to tell something on the बिहार का फिशरीज प्रोडक्शन के ऊपर. I will check this data, it has been given in a note also.
कि फिशरीज इन बिहार इसका फिश जो प्रोडक्शन है बेसिकली वो मैं बोल रही हूँ आपका अराउंड 2015-16 का डेटा है फिशरीज डायरेक्टरेट से. सो द फिश प्रोडक्शन इज अराउंड 5.09 बट मछली का डिमांड है 6.42 लाख टन्स. सो दिस शोज कि आपका जो डिफरेंस है दैट इज योर व्हाट टू से नो द गैप जो आपको फुलफिल करना है. इट्स अ 21% डेफिसिट गैप है आपका एंड दैट गैप कैन ओनली बी मिनिमाइज्ड अगर हम लोग फिश प्रोडक्शन को फुल्ली यूटिलाइज करेंगे. ओके, सो दिस दैट्स द रीज़न वाई कि मैं ये बोली कि द डिमांड एंड द प्रोडक्शन स्टेटस दैट शुड बी एट सेम और एट पार. ठीक है, अबव पार या बिलो पार होना नहीं चाहिए. ऑलवेज इट शुड बी एट पार. थोड़ा व्हाट टू से थोड़ा इधर उधर हो सकता है बट नॉट इन अ मच स्टेट. दैट मीन्स इफ देयर इज अ ह्यूज गैप दैट मीन्स द फिशरी प्रोडक्शन स्टेटस इन दिस स्टेट इज नॉट इन अ गुड status. Okay, and mostly it has been found out that the dominant species which I have talked about, the 6 dominant fish species जो Indian IMC में हैं and exotic carps, ये 6 species ही mostly ज़्यादातर aquaculture production में contribute करते हैं. And let me tell you something, India is also the second largest producer of our fish production और China first है इसमें. एंड जब आप फिश स्टॉक कर रहे हैं सो इफ इट इज अंडर स्टॉक इट वोंट हैम्पर योर सिस्टम. इट वोंट इकोलॉजिकली वो पूरा यूटिलाइजेशन नहीं करेगा पर इट वोंट हैम्पर. पर अगर आप ओवर स्टॉक कर देते जस्ट फॉर टू गेट मोर प्रॉफिट इट विल रियली हैम्पर इकोसिस्टम. क्यों? क्योंकि आपका जो सिस्टम है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में आप हर कंपोनेंट के साथ इंटरलिंक करते हैं. मीन्स द न्यूट्रिएंट विच द एक्सक्रीटा ऑफ वन कंपोनेंट विल बिकम द इनपुट ऑफ योर फिश पॉन्ड. राइट, तो वो जब एक्सक्रीटा आपका फिश पॉन्ड के अंदर आएगा द हाई अमोनिया ओके और द हाई नाइट्रोजन जो हो जाएगा सो दैट विल ऑलवेज हैम्पर द वाटर क्वालिटी पैरामीटर को हैम्पर करेगा. सो हमें हमेशा ऑप्टिमली स्टॉक करने के लिए कोशिश करना चाहिए. ओके, नाउ एक एग्जाम्पल मैं साइट की हूँ एंड दैट एग्जाम्पल इज आई हैव टेकन इट फ्रॉम ICR RCR पटना. एक्चुअली आई वेंट देयर एंड आई हैव फाउंड अ वेरी गुड मॉडल. बेसिकली देयर वर 2 मॉडल्स देयर. एक 1 acre का IFS मॉडल था, एक 2 acre का IFS मॉडल था. दे आर मोस्टली वर्किंग इन दिस IFS मॉडल्स. सो IFS मीन्स 2 acre के साथ फिश बेस था. सो आई हैव साइटेड दिस. सो बेसिकली जब भी कोई मॉडल को प्लान कर रहा है IFS मॉडल को इट कैन बी ऑफ एनी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स. ओके, इट डजंट मीन कि मैं जो कंपोनेंट बोल रही हूँ वही आपको करना है. इट मस्ट बी वेल प्लान. ऐसे प्लान करना है कि मतलब उसका हर जो प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट है वो यूटिलाइज हो सके. सो इन दैट वे वी नीड टू प्लान इट एंड ये क्या वैरी भी करता है. लाइक द थिंग जो मैं बोल रही हूँ इट कैन वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और लाइक कोई पिगरी नहीं करना चाहते, कोई गोटरी नहीं करना चाहते हैं, कोई डकरी नहीं करना चाहते. सो एक मीन्स लाइक इट डिपेंड ऑन इट्स प्रेफरेंस, टेस्ट क्या है किसी का, मतलब कौन से जगह में क्या ज़्यादा चलता है, मार्केटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है. सो थिंकिंग अबाउट ऑल दोज पैरामीटर्स एंड फैक्टर्स, आप देन सॉइल क्वालिटी कैसा है, कौन सा आपको ज़्यादा सूट करेगा. सो ये सब पैरामीटर्स के ऊपर भी आपका डिज़ाइन व्हाट टू से नो डिज़ाइन भी डिपेंड करता है. सो इट विल वैरी ऑल्सो. सो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल आपको बोल रही हूँ सो दैट यू विल गेट अ ब्रीफ आइडिया कि क्या हो सकता है. बेसिकली like in a 2 acre pond like it will resemble around 8,000 something meters square, not 10,000 because 2.5 acre is 10,000 meters square, right? So इसमें हम आप 2 चीज़ लिए, एक है मेन एंटरप्राइज लिए, एक है अलाइड एंटरप्राइज लिए है. सो मेन एंटरप्राइज में ये लोग लिए थे फील्ड क्रॉप, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड फिश. ओके, सो फिश ये लोग मेन कंपोनेंट में रखे और फिश के ऊपर जब आप नीचे में अगर देखेंगे फिश के ऊपर वो एक डकरी हाउस रखे हैं. ऑल राइट, एंड लाइक एग्रीकल्चर और अगर हम सीरियल यूनिट का बात करते हैं तो उसमें राइस, व्हीट,
देन मेज, ये सब ये लोग किए हैं. एंड ओके, आई विल गिव यू अ क्लियर. ये जो सीरियल ब्लॉक ये है, ये 200 मीटर स्क्वायर का बना है, जिसमें से ये लोग राइस व्हीट का एक कॉम्बिनेशन लिए हैं, नहीं तो राइस मेज का एक कॉम्बिनेशन लिए है, राइस मस्टर्ड, नहीं तो राइस लेंटिल और ग्राम जो भी है. तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स का कॉम्पोजिशन लिए, डिपेंडिंग कि उसका समटाइम्स लेंटिल या ग्राम लेता है बिकॉज इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑल्सो. इट्स अ लेग्यूम. तो हम लोगों को कभी कभी जब हम लोग देखेंगे कि मेरा सॉइल फर्टिलिटी थोड़ा डिग्रेड कर रहा है, सो वी विल ऑलवेज ट्राई टू यूज लेग्यूम्स. ओके, एंड सी द थिंग इज लाइक ये लोग पोल्ट्री, डकरी ये यूनिट ऐड किए हैं. एंड इफ आई ऐड गोटरी, हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि आई नीड लिटिल फॉडर फॉर दैट. तो फॉडर यूनिट ये लोग बनाए हैं, जिसमें खरीफ में ये लोग MP4 और काउपी का रखे हैं, विंटर में रखे ये लोग बरसिम और ओट का, और समर में रखे फिर काउपी और MP4 का. सो दिस आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉडर. आई हैव सीन इट कि वो लोग ऐसे काटते हैं, मीन्स दे यूज इट इन द सेम वे कि एक जगह से काट रहे हैं तो दूसरी जगह से बढ़ रहा है. लाइक दे यूज इट सस्टेनेबली, ऑप्टिमली. लाइक ऐसा नहीं है कि वो लोग पूरा एक दिन काट दिया एंड द नेक्स्ट डे यू फाइंड नथिंग देयर. सो द थिंग इज आपको हमेशा ऐसे मेंटेन करके रहना चाहिए कि एवरी डे आई कैन प्रोवाइड माई गोट द फ्रेश फॉडर, ओके, द ग्रीन फॉडर. देन हॉर्टिकल्चर ये लोग रखे जो मोस्टली लाइक कुछ ये लोग रखे कि मैं देखी हूँ जो वेजीज है वो थोड़ा ज़्यादा एरिया के लिए रखी, और कुछ था जो बांध के लिए, मोस्टली वो फ्रूट्स था लाइक इन टर्म्स ऑफ गुआवा, पपाया, ये सब था. ओके, एंड हॉर्टिकल्चर में ये लोग रखे थे खरीफ में ब्रिंजल, काउपी, ओकरा, विंटर में रखे थे टोमेटो, कॉलीफ्लावर, फ्रेंच बीन, एंड समर में रखे थे काउपी, ऑनियन, ओकरा. एंड ये लोग पोल्ट्री यूनिट भी रखे हैं साइड बाय साइड, एंड मशरूम यूनिट रखे हैं. एंड मशरूम में ये लोग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशरूम मोस्टली कर रहे हैं. एंड अनदर द वेरी नाइस पार्ट ऑफ दिस सिस्टम इज द फार्म यार्ड मैन्योर. जितना भी वेस्ट, जितना भी पत्ता, डिके या डिकम्पोज जितना भी है वो वहाँ पर कलेक्ट होता है, एक जगह में मतलब स्टैक करते हैं, एंड आफ्टर फ्यू डेज दे कीप इट इन दैट स्लैब, कंक्रीट स्लैब, और उससे वो लोग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं. एंड दैट हेल्प्स बेसिकली फॉर फर्टिलाइजेशन इन दिस एग्रीकल्चरल फॉडर, ये सब. और जितना भी यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट कमिंग आउट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री सच एज इन केस ऑफ गोटरी, डकरी, पोल्ट्री, यहाँ से जितना भी आपका एनिमल वेस्ट निकलता है वो डायरेक्ट चला जाता है आपका फिश पॉन्ड में. बट डिपेंडिंग कि आपका स्टॉक कितना है, कितना आ रहा है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस यू नो कि जितना भी वेस्ट आ रहा है आप सभी डंप कर देते पॉन्ड में, थिंकिंग कि मेरा पॉन्ड का फर्टिलाइज ज़्यादा हो जाएगा. बट समटाइम्स इट इज़ द अदर वे राउंड. क्या हो जाता है, इतना ओवर फर्टिलाइजेशन के कारण के लिए यूट्रोफिकेशन हो जाता है, और आप देखेंगे कि जो पानी का कलर है वो ज़्यादा हरा हो गया है या ज़्यादा काला हो गया है. दैट मीन्स द नाइट्रोजनस वेस्ट हैज़ इंक्रीज्ड मोर. तो उस टाइम में आपको क्या करना है, द लेवल ऑफ दैट एक्सक्रीटर शुड बी रिड्यूस्ड, और आपको कुछ दिन तक आपको चूना या फिर एरिएशन ये सब देना पड़ेगा. मीन्स यू हैव टू मेंटेन दैट थिंग कि आप कितना रेशियो में डाल रहे हैं एंड ऑल दैट. So this is the almost the thing which I have found, and it is very interesting, and I have seen कि इसका जितना भी units है, जितना भी components है, they all are somewhere interrelated with each other. And the best part is इन लोगों का feed almost 90% मिनिमाइज हो गया. almost 10% फीड इन लोगों को मतलब खरीदना पड़ता है. एंड in this case the benefit cost ratio is also in a good way. तो सब मिलाकर ये देखा गया है कि दिस यूनिट इज़ रियली वेल अडाप्टिव, एंड इफ़ रिक्वायर्ड यू कैन कॉन्टैक्ट ICAR RCR रिगार्डिंग दिस मॉडल. नाउ मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि 1 हेक्टेयर पॉन्ड तालाब के लिए आपको ऑलमोस्ट 6000 से 8000 फिंगरलिंग स्टॉक करना चाहिए. बट अलॉन्ग विद दैट व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ डक
देन गोट, कौन सा वैरायटी आपको लेना चाहिए एंड ऑल दैट। तो इसके लिए भी एक नोट में आपका एक टेबल है एंड लिटिल मैं खुद भी बोल रही हूँ। एंड इससे क्या होता है कि आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलता है फ्रॉम एवरी कंपोनेंट, ये भी आपको पता चलेगा। सो देखा गया है ऑलमोस्ट 6,000 से 8,000 अगर आप करेंगे तो मिनिमम 2 टन से 5 या 6 टन तक आपको एवरी ईयर मिल ही जाएगा फिश, and without any feed cost, without any fertilizer cost. So it's a very profitable enterprise basically, and profitable and scientific approach. And जब आप पर you should keep in mind कि आपको कितना stocking density देना है, and so these are the very critical areas which you should always think before you start this type of farming. सो डक में हम लोग मोस्टली रखते खाकी कैम्बल और वाइट पेकिंग या इंडियन रनर मोस्टली, एंड इट शुड बी इन द रेशियो ऑफ लाइक 400 से 550 per hectare. Okay, so even 300 is also more than enough basically. पर you should keep in mind कि ये अगर आप फिश स्टॉक कर रहे हो तो the fishes should be in a bigger stage, because what happens sometimes duck कभी कभी ना बायोरेटर का काम करता है and it comes down to the pond. और क्या होता है, अगर फिशेज are small they take that fishes, they grab it, okay, और ये खा जाता है. So there is a very negative impact of duck cum fish farming. But अगर आपका fishes का size बड़ा है so it will obviously help in form of bioaeration, और उनका जो ड्रॉपिंग है वो भी पॉन्ड फर्टिलाइज कर देगा. द सेकेंड इज द पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग. इसमें भी लेगहॉर्न है जो ब्रॉयलर है फॉर द मीट, एंड अदर इज द वेनकॉक जो एग लेयर है. इसके लिए भी आपको 500 to 600 अगर आप चिक्स रख लेते हैं पोल्ट्री का, सो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर 1 हेक्टेयर. एंड अगर आप ये रखते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट अराउंड 40,000 to 60,000 eggs and 500 kg of chicken meat. Everything is given in the note. Please refer the note and just find out कि कौन सा enterprise you can do so that you can increase the production, or you can make the waste utilization more. Then coming to the cattle में होता है बछौर, साहिवाल, पूर्णिया, सीरी, ये सब ब्रीड्स मोस्टली है ईस्टर्न रीजन बेल्ट में, और जिसका स्टॉक हम 5 से 7, बट बफेलोज वी विल कीप 3 to 5 बिकॉज बफेलोज उसका एरिया थोड़ा ज़्यादा लेते हैं. एंड मोस्टली मुरा मोस्टली यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होते हैं. गोट, अगर गोट कम फिश फार्मिंग करते तो ब्लैक बंगाल गोट इज़ द बेस्ट approach, and I will always recommend black Bengal goat. It's a meat type, but Jamanapari and Barbary, they are very good for milk. Okay, so ये भी आप use कर सकते हैं. 55 to 75 दिया है, 50s is also well good for this. And pick cow fish farming में, because I don't know about people, but यहाँ पर according to my experience I have seen pick cow fish का लोग ज़्यादा नहीं करना चाहते. But even if you are interested you can invest, because इससे आप देख भी रहे कि fish production को ज़्यादा like it's in a hike, ज़्यादा increase हो रहा है. It's around 4 to 6 tons per hectare per year. The pigs which you can use are the Landrace, Hampshire and White Yorkshire. So these are the different animal husbandry components which you can use as integrated farming system. Okay, so finally we have come into almost the conclusion. So as you all know, and as we have already talked about it, that the advantage of integrated farming system is really very vast. Like it's a very minimum expense, like lowering the production input cost and maximizing its output, and like which results in higher production, higher income. And बस यही नहीं, it also increases income generation and promotes in a better better
लाइक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बिकॉज इसमें हम केमिकल्स कम यूज़ करते हैं, थोड़ा पेस्टिसाइड्स कम यूज़ करते हैं, एंड ऑल दिस लाइक लिटिल ऑर्गेनिक काइंड हो जाता है. एंड लाइक एक सिस्टम लाइक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, क्योंकि आप एक ही जगह में बहुत डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, एंड दैट रियली हेल्प्स आउट बेसिकली फॉर अदर कंपोनेंट्स टू ग्रो, एंड लाइक सब इंटरलिंक्ड है. सो व्हाट हैपेंस इज लाइक आपका फीड का खर्च, फर्टिलाइज़र का खर्च, आपका जो स्पेस का खर्च, दैट रिड्यूसेस अ लॉट एंड इट रियली हेल्प्स. एंड और एक बात है, कभी कभी व्हाट आई हैव टोल्ड दैट एक्स्ट्रा अगर आपका एक्सक्रीटा आ जाता है तो द पॉन्ड बॉटम समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, वो ज़्यादा मक्की हो जाता है, एंड विच इज़ एनीवेज विच इज़ हाई इन व्हाट टू से नाइट्रोजिनस व्हाट टू से वेस्ट. बट वो क्या करते हैं हम लोग, पानी को ड्रेन आउट करने के बाद जो मक बचता है दैट वी कैन यूज़ इट एज अ फर्टिलाइजर अगेन इन एग्रीकल्चर एंड लाइक अदर पार्ट्स लाइक एग्रीकल्चर हो, फॉडर हो, लाइक कोई भी एक्स्ट्रा फील्ड में आप यूज़ कर सकते हो. सो अगेन दिस अगेन हेल्प्स अस to utilize our waste. Okay, so and और एक बात है, लाइक ऑलवेज वी शुड नेटिंग करना चाहिए फिश पॉन्ड में, बिकॉज एंड समटाइम्स वी नीड टू व्हाट टू से नो टेक सम स्टॉक आउट, मार्केटिंग कुछ कर देना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि फिश ग्रोथ अगर हम पूरा ज़्यादा डम करके रखेंगे तो उसका ग्रोथ उतना ज़्यादा रैपिड इंक्रीज नहीं होता. इंटरमिटेंट ग्रोथ इज़ मच इम्पॉर्टेंट, एंड दैट विल ऑब्वियसली हेल्प टू मेक द सोमैटिक ग्रोथ फास्टर. Right, and obviously it helps in employment opportunity, and it also, I will add up something like it will also add and prevent malnutrition, because एक ही system से आपको सब मिल जा रहा है, and we will be waived off, or we will prevent ourselves from malnutrition, and our food security, the problem of food security can also be minimized. But there must be some preventive measures also regarding the same, because कभी कभी क्या होता है ना, the fishes which we bring from other places, that place is not certified, या उसका जो मछली का जो क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं होता, बिकॉज वी कान अंडरस्टैंड बीइंग इनिशियल बिगिनर और समथिंग लाइक उसका ट्रेड कैसा होगा. सो दिस थिंग्स शुड बी लिटिल बिट, वी शुड बी मोर केयरफुल टूवर्ड्स इट. हम लोगों को अच्छा फिश सीड लाना चाहिए, फिंगरलिंग विच वी आर ब्रिंगिंग, तो उसका आइदर ऑथराइज्ड से ही लेना चाहिए मोस्टली. एंड लाइक द फीडिंग स्टफ, लाइक जो आप खाना दे रहे हो, ट्राई टू मेक इट मोर केमिकल फ्री. जो स्टॉकिंग डेंसिटी कर रहे हैं वो भी आप थोड़ा अच्छा लाइक ऑप्टिमली स्टॉक कीजिए. द ओवर स्टॉकिंग इज़ नॉट एट ऑल एडवाइज्ड, एंड समटाइम्स आप वाटर क्वालिटी पैरामीटर, इवन सॉइल क्वालिटी पैरामीटर्स को भी लाइक मॉनिटर करना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो दैट कभी भी कोई फ्लक्चुएशंस ऐसा ना हो कि हमको पता नहीं है सडनली सब मछली मर गए, आपको पता नहीं है सडनली सब कुछ आपको ख़राब हो गया फील्ड में. सो अगर आप रेगुलर मॉनिटर करते हो, लाइक पीरियडिकली मॉनिटर कर रहे हो, so that will obviously help, or that will prevent you for a big disaster. And there is always an environment impact assessment, because sometimes we don't know कि कहाँ से नाइट्रोजन आ रहा है, या फिर कुछ डिजीज़ कभी स्प्रेड हो जा रहा है, because from animals there are many animal borne diseases too जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. so that thing need to be taken care of in. so हमेशा health inspection of animals, especially cattle, buffaloes, need to be taken regularly basis. And obviously there should be an ecological and economic efficiency of IFS, and that will help for a better and a good future. And with this I conclude my class, and thank you everyone for your patience hearing.